So hello students, welcome to EduTap. Since NABARD Grade A 2023 notification is out, I know everybody is giving their best, but the people who are self-preparing now they are at pinch. कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ से करूं, what do I have to prepare for this examination. So today I'm here to explain everything to you. After watching this video, I promise you, you will get a complete idea how to prepare for this examination, what is important for this examination, and what you should do right now. So you will get complete understanding of everything that you need to know to crack NABARD Grade A 2023. So today we'll be discussing the syllabus, but not the syllabus given in the notification. थोड़ा सा what is if you are self preparing, तो एक aspirant के point of view से how a syllabus should look like. तो इसमें basically important point we'll discuss. Then we will discuss the sources. Some of these sources will be free. Some of these sources again are some books that you will have to buy. But regardless, I'll give you so many free option कि अगर आप book नहीं भी लेना चाहते तो you will be at a comfortable position. Then there will be of course sources तो मैं आपको बता सकती हूँ, but it is not like कि we have 1 year 2 year. So इन sources को इस mean time में cover कैसे करना है, that I'll also explain. उसके बाद इन सबको आपको करने के लिए ideally कितना time लगना चाहिए, so timetable I'll provide you also. And even after telling everything, even after knowing about the NABARD and NABARD examination, you will still make some mistake. This is guaranteed. ये mistakes वो हैं जो some past student of ours they have made and they have regretted those mistakes. Even the topper interview you will see. So some toppers, they said कि I have made this mistake, due to that I was not able to get 2 marks, 3 marks, 4 marks in this attempt. So we have compiled those mistakes. So ज़्यादा नहीं, but थोड़ी सी mistake that are the most probable one and the most frequent one. We will also discuss that. With this, let's jump into the video and first of all look at the syllabus. Now why it is important to look at the syllabus? देखो, whenever you are preparing for any examination, the first thing that you should know is मैं prepare करूँ क्या. So here it is very important that you have the understanding कि नाबार्ड के point of view से क्या चीज़ important है. So please do understand when we talk about the merit section and non-merit section, आपका जो merit subject है, that are your ARD and your ESI and your GA. These 3 subject worth of 100 marks जिनके directly calculate होते हैं final merit. So these 3 subject are of utmost importance. और इनमें से जो ESI और आपका ARD है, that is same as your phase 2. सो दे होल्ड डबल एडवांटेज. फेज 1 में क्योंकि मेरिट सेक्शन है एंड फेज 2 में भी इसमें से क्वेश्चन आएंगे. पेपर 2 विल बी बोथ फ्रॉम ESI ARD. That is why these 2 subjects are very 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 important. So no matter how much lightly you are taking the exam, even if you are just trying out this exam for the first time, you are just seeing ki okay, shall I prepare for this or not, so I would recommend you check the PYQ. PYQ will give you a guaranteed idea कि इस एग्जाम में किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टोन इज यूज्ड, व्हाट इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक. दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट देयर. बट अगर अभी उसका टाइम नहीं है, वो नहीं करना चाहते हो, सो इन दैट केस व्हाट आई वुड रिकमेंड यू इज हियर आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू विल हैव टू डू. सो दीज आर द 7 चैप्टर जिनमें आउट ऑफ 40 तो देखो आपके ऑलमोस्ट ले लो मैक्सिमम 10 मार्क्स. आई एम टेकिंग मैक्सिमम कि भाई सिनेरियो ऐसा है कि ज़्यादा करंट के क्वेश्चन है तब भी आपके 10 जाते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट लास्ट टाइम जो आपके करंट के क्वेश्चन थे, दे वर ओनली 7. बट अगेन sometime in the past year the maximum number has been 10, so let's keep it 10. उसमें से 30 मार्क्स का आपका ARD स्टैटिक होता है आउट ऑफ 40. उसमें भी you will see 22 के अराउंड क्वेश्चन जो है आर ओनली फ्रॉम दीज 7 टॉपिक. सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इफ़ यू आर प्लानिंग टू क्रैक इवन फेज 1, यू कैन नॉट लीव दीज टॉपिक्स. इसमें भी वट आई अंडरस्टैंड इफ ARD इज न्यू टू यू. देखो अगर आपने ARD पढ़ा है, आपके एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है, देन दिस इज नथिंग, आप कर सकते हो 7 चैप्टर्स को. बट इफ़ यू आर अ फ्रेशर, इफ़ यू हैव नो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, उस केस में प्लीज़ बी वेरी क्लियर, अगर आपके पास इन चैप्टर्स को करने का भी टाइम नहीं है, देन you can go for these topic from each chapter. So I have used color coding here. So here you can see from agronomy, this is somewhat brown color. So orange में जो topic लिखा हुआ है, that is from agronomy, that you will have to do. उसके बाद farming system में types of farming will be important.
टाइप्स ऑफ फार्मिंग में जस्ट डोंट रीड कि दिस आर टाइप ऑफ फार्मिंग, उनके बारे में एक दो यू विल हैव टू सी द की फीचर्स ऑल्सो, बट दिस टॉपिक यू विल हैव टू डू वेरी केयरफुली अगर पूरा फार्मिंग सिस्टम करने का टाइम नहीं है। आइडियली क्योंकि 7 ही चैप्टर है, सो आई वुड रिकमेंड कि कर लो। देन उसके बाद फ्रॉम द सॉइल चैप्टर दैट इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो आपका प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर का, सॉइल वाटर का एंड एनिमल हस्बेंड्री का है, ये आउट ऑफ 7 चैप्टर भी ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सॉइल वाटर कंजर्वेशन में टाइप ऑफ सॉइल्स एंड सॉइल वाटर का रिलेशनशिप यू विल हैव टू डू। टाइप ऑफ सॉइल मीन्स एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, दिस काइंड ऑफ थिंग। देन सॉइल वाटर में आपको देखना होगा कि व्हाट आर डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर दैट आर फाउंड, व्हाट इज ग्रेविटेशनल वाटर, व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो इन चीज़ों को बस बेसिक यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। Nobody is telling you to go in depth, understand what are the forces working behind it, go into the physics. Nobody is saying that. But basic understanding of these two need to be there. उसके बाद method of prevention of soil erosion. सॉइल वाटर से देखो यू विल हैव टू मेक अ ब्रिज हेयर। सॉइल वाटर के पढ़ने के बाद आपने देखना है कि सॉइल वाटर के रिलेशन को या फिर सॉइल के मूवमेंट को हाउ इट इज कंट्रोल। सो सॉइल का इरोजन किस तरह का होता है, देयर इज 2 टाइप ड्यू टू एजेंट, एक एयर एक वाटर। एयर में कौन से 3 टाइप के होते हैं, वाटर वाइज कौन से 5 टाइप के होते हैं, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद इस इरोजन को प्रिवेंट कैसे करना है। सो देयर आर बेसिकली 2 मेजर्स दैट वी नो। एग्रोनॉमिक मेजर्स होते हैं, इंजीनियरिंग मेजर्स होते हैं। किस केस में आपने कौन सा लगाना है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो प्रिवेंशन वाला टाइप होने वाला है। सो हियर यू विल हैव टू नोट डाउन कि किस स्लोप में क्या हो रहा है, उसमें क्या की फीचर्स है, ये आपको देखना होगा। टेक द हेल्प ऑफ द डायग्राम। गूगल में बस लेट्स से यू आर कंटूर बंडिंग आप चेक कर रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कंटूर बंडिंग, जस्ट गूगल द इमेज, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। देन आपका नेक्स्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये ऐसा टॉपिक है एवरी ईयर 1 to 2 क्वेश्चंस आर देयर। सो ये यहाँ से ऐसा है कि अभी तक लगातार क्वेश्चन आ रखे हैं इन वन फॉर्म और अनदर, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से करना है, राइट। देन फ्रॉम हॉर्टिकल्चर इट विल बी योर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एंड ब्रांचेस। प्रोडक्शन से मीन ये थोड़ा सा एडवांस एस्टिमेट आपको पढ़ने होंगे, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ करंट, बट रिगार्डलेस दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड। देन आपकी जो हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस है एंड प्रोडक्शन में भी जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है उनके साइंटिफिक नेम और सो यू विल हैव टू सी। देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड उसके टाइप्स यू विल हैव टू सी। उसके बाद जो हॉर्टिकल्चर में मेजर डिजीजेज एंड पेस्ट है, आई एम नॉट सेइंग गो ईच एंड एवरी पेस्ट, उसका साइंटिफिक नेम याद करो, उसके मैंडिबल कितने हैं ये सब याद करो, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। बस आपको जो मेजर पेस्ट है उसकी क्या फीडिंग हैबिटेट है ब्रॉड टर्म में। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल एप्पल का पेस्ट याद करो, बिल्कुल ग्रेप का पेस्ट याद करो, दैट इज नॉट माई इंटेंशन। उसके बाद आपका एनिमल हस्बेंड्री, उसमें आपको क्या पढ़ना है, यू विल हैव टू सी द ब्रीड, उसमें यू विल हैव टू सी द टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज देयर। तो एनिमल हस्बेंड्री को आप ऐसे कवर करोगे। फिर एनिमल हस्बेंड्री में ही एक मिल्क कंपोनेंट होता है, तो मिल्क को भी आपने अच्छे से करना है। इस मिल्क में थोड़ा सा प्रोडक्शन को भी चेक कर लेना, ऑलराइट, क्योंकि इंडिया बहुत ही वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, राइट। तो इसका भी थोड़ा सा डेटा यू विल हैव टू चेक। उसके बाद पोल्ट्री भी आपको अच्छे से करनी है। पोल्ट्री में देखो यू डोंट हैव टू गो फॉर ईच एंड एवरी ब्रीड, आपको डक टर्की इन सबको नहीं करना है, यू जस्ट फोकस ऑन द चिकन्स, राइट। उसमें अच्छे से आपने कर लेना है पोल्ट्री ब्रीड्स में, यहाँ यू विल हैव टू सी द ब्रीड्स एंड द टर्मिनोलॉजी। उसके बाद कमिंग टू द फिशरीज, फिशरीज में यू फोकस ऑन द टाइप ऑफ फिशरीज एंड द प्रोडक्शन, right, and fisheries का ही second part, although wrong color coding is there for 14, it is also part of fisheries. You will see aquaculture. Fisheries में major question are asked from this particular topic. Aquaculture, इसमें you will have to do what are aquaculture, इसके breeds क्या हैं and different type of aquaculture क्या होते हैं, you will have to see that, कि marine water aquaculture क्या है, fresh water aquaculture क्या है, brackish water aquaculture क्या है, these kind of thing you will have to do, right. Last but not the least, द फॉरेस्ट्री एंड द टाइप। नाउ इस टॉपिक में से, फॉरेस्ट्री के सिर्फ इस टॉपिक में से मेंस में आपके क्वेश्चन आता है, मेंस में आंसर राइटिंग में क्वेश्चन आ रखा है, और आपका प्रीलिम्स में भी 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन वर ओनली फ्रॉम द टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री, राइट। तो ये टॉपिक आपका फेज 1 पॉइंट ऑफ व्यू और फेज 2 पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द 7 टॉपिक दैट यू विल नीड टू डू। अभी थोड़ा सा ESI डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इन टॉपिक्स को आप कैसे करोगे, राइट। सो हैव अ लिटिल पेशेंस। उसके बाद आपका ESI, देखो ESI में आई विल टेल यू वन थिंग, इफ यू हैव कवर्ड ESI ड्यू टू एनी रीजन, maybe it was in your graduation, maybe you are preparing for UPSC, maybe you are preparing for RBI, maybe you just have a general interest in economics, but if you have done a decent
ESI. In that case you do not need to worry. ESI static का देखो, you will have to understand जो component itself है वो ऐसा नहीं कि it holds a lot of weightage. Although chapter का ESI important है, but यहाँ पे ESI static का weightage if I talk about, तो उसका weightage आपका आता है out of 40. इट इज मैक्स टू मैक्स, अगर कभी चला जाएगा तो इट विल बी 8 to 10. अदरवाइज लास्ट ईयर कितना था, अभी रिसेंट ईयर में ट्रेंड कितना रहा है, लास्ट ईयर 3 था, उससे पहले 3 था, उससे पहले 5 थी, राइट. तो मैक्सिमम आपके 10 जा सकते हैं, बट मेजर आप देखोगे कि 5 3 के अराउंड रहते हैं. तो इसी को लेके सी मैं ये नहीं कहूँगी कि प्लीज कंप्लीटली लीव इट, बिकॉज ESI स्टैटिक में से क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग दैट कैन बी वर्थ ऑफ आइदर 10 और 15 मार्क्स. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ESI स्टैटिक यू विल हैव टू प्रिपेयर, बट आपको बेसिक ESI स्टैटिक करनी है. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. यू डोंट नीड टू गो फॉर डेप्थ, यू डोंट नीड टू बी अ इकोनॉमिस्ट to cover the ESI static, right? So these are the again 7 topic that you will have to do for your examination. Now in topic में से भी if you don't have time to cover each and everything, I will say just revise. If you have background, just revise, just jump into the revision. No need to go again, check your notes, read everything from scratch. No need to do that. If you're not from the economics background, in that case these are the topic I would say you should focus, right? तो national income, social infrastructure, Indian political system, this particular topic is only important for your phase 1, राइट. तो ये फेज 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, फेज 2 के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन इन्फ्लेशन एंड द ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, फिस्कल पॉलिसी, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन गवर्नमेंट. अब ये जो लास्ट टॉपिक है आपका 26 टॉपिक, दैट इज द पार्ट ऑफ योर स्कीम्स रिपोर्ट एंड करंट, राइट. तो कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, कोई भी इनिशिएटिव ले रही है, कोई भी ड्राइव कर रही है, तो दैट इज फॉर पोवर्टी एलिवेशन विल बी पार्ट ऑफ योर ESI एंड विल बी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, राइट. सो आई होप यहाँ से यू हैव अ कंप्लीट आइडिया कि क्या टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होंगे फॉर द ESI एंड ARD. And अगर I'll have to seriously tell you for the GA, rather than giving you topic to topic, I would say देखो GA में ना सब important होता है. GA is like just any other examination, be it your CDS, be it your RBI, be it your anything, जहाँ पे हर चीज़ important होती है, right? तो GA के लिए but the plus point is first of all it is only important for phase 1, phase 2 में इससे related question नहीं आएंगे. The second is the question that are asked are not very much in depth, so you will just have to look on the recent topic. इंडिया में फर्स्ट टाइम क्या हो रखा, वट आर द डिफरेंट मेडल द पीपल ऑफ इंडिया हैव वॉन, वट आर द डिफरेंट accolade that have been provided to people of India, right? So books and author you will have to focus on that are in news. So anything that is in news will be important, but yes, you don't have to go in the depth. Nobody is asking you कि भाई ये बुक लिख रखी है, इसके अंदर बताओ क्या लॉजिक है, बताओ क्या बात हो रखी है. इफ somebody have written the biography, the question can either be कि X person have written the biography of Y person, or it can be like कि X person's की biography was written by whom, right? So these will be the question. Either you'll get the book का name so that you'll be able to guess the answer, but इतना ही आपको करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. इसी तरीके से हमारे डिफेंस एक्सरसाइजेज दैट आर देयर, अपॉइंटमेंट्स दैट आर देयर, द पर्सन्स दैट आर ड्यू टू वेरियस रीजन दैट आर इन न्यूज़, राइट. सो वी नो कि अगर हमने कोई इवेंट जीत रखा है या somebody हैज़ बीन गिवन सम अवार्ड, तो वो पर्सन इन न्यूज़ हो जाता है, राइट. somebody हैव टेकन सम इनिशिएटिव, सो उसकी वजह से उनकी बात की जा रही है, सो दे बिकम द पर्सन इन न्यूज़ एज वेल. सो आई होप यहाँ पे यू हैव अ कंप्लीट आइडिया हाउ टू टैकल द ESI, ARD, GA और आई वुड से द मेरिट सेक्शन, राइट. अभी देखो इसके लिए तो GA के लिए आई वुड से इफ़ यू आर रेफरिंग टू एनी सोर्स, तो मैं आपको बता दूंगी एड्यूटैप पे भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए मैं आपको डिटेल में लेके चलूंगी, दिखा के अच्छे से आपको बताऊंगी, राइट. तो वो आपको मिल जाएगा. बट इफ़ यू आर नॉट रेफरिंग टू एनी सोर्स, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो दैट ऑल्सो विल बी इनफ. बस आपको करंट पढ़ते रहना है, राइट. नाउ इसके अलावा आपका ESI के अलावा, GA के अलावा, ARD के अलावा यू हैव ऑल्सो हैव नॉन मेरिट सेक्शन. तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी. सो नो नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट, जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. जब आप इंग्लिश कर रहे हो तो
इंग्लिश आपका ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे यू डोंट हैव टू गो फॉर द बेसिक. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि ये जो सेंटेंस है बताओ इसमें नाउन क्या है, बताओ इसमें एडवर्ब कौन सी यूज हुई. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू. रादर दे विल गिव यू अ सेंटेंस एंड दे विल से कि ओके दिस स्टेटमेंट में फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग एंड मेक इट करेक्ट. सो दे विल गिव यू 4 ऑप्शन. यू विल हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल which part is the, I mean some certain correction will be given and you will have to select the right answer. They will give you reading comprehension. So if you are able to understand things in English, I would say कि practice more. Practice के साथ you will be able to score well in reading comprehension, close test, error detection. If you can manage to do these 3, you will be on the safer side. And please keep in watch in English का cutoff, because like unlike other subjects, नॉन मेरिट में इंग्लिश की कट ऑफ लास्ट टाइम वॉज 12.5. सो इट कैन वेरी मच बी 15 दिस टाइम. सो आउट ऑफ 30 आपका 15 भी कट ऑफ जा सकती है फॉर इंग्लिश. सो इंग्लिश में आपको मिस्टेक बहुत कम करनी है एंड प्रैक्टिस नीड टू बी डन वेरी वेल. उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट है. क्लोज टेस्ट से भी देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से यू विल सी अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं. क्लोज टेस्ट से भी अगेन 8 to 10 क्वेश्चन आ जाते हैं. देन एरर डिटेक्शन से भी आपके 5 to 10. अब थोड़ा बहुत सीक्वेंस चेंज हो जाए, जैसे लास्ट टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 8 क्वेश्चन आए थे, क्लोज में से 8 क्वेश्चन आए थे, राइट. सो if you have done these 2 part very correctly, what will happen, you could have gotten 16 marks, which is much safer than 12. तो ऐसा नहीं है कि आपके जस्ट 12.5 आ रखे हैं, तो you could have easily get that. उसके अलावा if you can manage to do 2, 3, 4, you could have been in a very 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 safe side. So this is something that you will have to note down कि English में the more you practice the better result will be there. उसके बाद coming to the quants. So quant में these are the topic that are there. एंड इनका नॉन मेरिट का आपको सिलेबस भी नहीं मिलता, राइट. तो दीज आर ऑल द टॉपिक्स दैट कैन बी आस्क्ड इफ यू आर समबडी हु हैव गिवन RBI, UPSC, सम अदर बैंकिंग एग्जामिनेशन, कैट, SSC, एनी एग्जामिनेशन वेयर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश इज द पार्ट. उसमें तो आप बेसिक पे जाओ ही मत, आप सीधा जाओ, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो. आपको पता है क्या होता है बेसिक्स, राइट. यू हैव डन इट वंस, सो इट इज मोर देन इनफ. इफ यू आर समबडी हु इज टोटली फ्रेशर, कॉलेज से अभी आ रखे हो, किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे थे, नाउ यू आर लुकिंग एट नाबार्ड, इन दैट केस द टॉपिक दैट आर highlighted and are in red, you do these topic. You will be able to easily score well above the cutoff. If you still are not sure, you want to be on safer side. You don't want to take any risk कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे मैं 2 क्वेश्चन गलत भी करूँ तब भी मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए. In that case, you can go for the topic that are written in red, that is profit loss, interest, time and work, then time, speed and distance. So these you can go for these topic after you have completed the topic that are highlighted. उसके बाद कमिंग टू द रीजनिंग. देखो रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से, मैक्सिमम क्वेश्चन. लास्ट टाइम सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, राइट. सो 4 मार्क्स के 8 मार्क्स के आपके यहीं से क्वेश्चन आ गए थे. देन उसके बाद पजल आपकी कितने की गई थी, पजल आपकी गई थी 5 मार्क्स की, राइट. तो यहीं से देखो यू आर ऑन द सेफ साइड. बट रीजनिंग की कट ऑफ कितनी गई थी, 3.75 राउंड, राइट. तो देखो यहाँ तो आप बहुत अच्छे से हो जाते हो. इसके अलावा रीजनिंग में द टॉपिक दैट आर रिटन इन रेड, उनमें से भी 1-2 के क्वेश्चन आ जाते हैं मार्क्स के. सो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं करने में, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक, देन गो फॉर द टॉपिक दैट आर रिटन इन रेड, right. But overall this is the syllabus and that is what you need to understand about the reasoning. जितने भी नॉन मेरिट सेक्शन है उसमें बस सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है. You don't need to score the 17 or 18 out of 20. All right. Then coming to the computer knowledge. Computer knowledge में these are all the topic that are there. The topic that are in yellow box. These topic are something that could have easily helped you clear the cutoff. But if you want to be on the safer side, then yes, you can go for the remaining 4 topics. देखो यहाँ बहुत ज़्यादा syllabus नहीं है. It is not like it will take you 2, 3, 5, 10 years to do this. कंप्यूटर नॉलेज बहुत बेसिक एंड बहुत इजी आती है. इवन इफ़ यू हैव रेड कंप्यूटर थोड़ा सा स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर ड्यू टू सम अदर रीज़न, कंप्यूटर नॉलेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. दीज टॉपिक, द टॉपिक दैट आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन आर समथिंग दैट यू विल बी एबल टू नो. चाहे आंसर ना आता हो लेकिन अंडरस्टैंडिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी. सो कंप्यूटर नॉलेज में अगेन आई वुड से कि डू सम टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन. देन कमिंग टू द डिसीजन मेकिंग. देखो डिसीजन मेकिंग इज ऑफ ओनली 10 मार्क्स. सो सिमिलरली यहाँ पे जो सिलेबस है दैट इज नॉट वेरी बल्की.
तो यहाँ पे सिलेक्टिव टॉपिक यू विल हैव टू डू, दीज आर ऑल द टॉपिक दैट यू नीड टू डू, एंड इन टॉपिक को आपने कर लेना है, राइट। इनमें से भी जो आपका टॉपिक नंबर 2 है दैट इज टाइप्स ऑफ डिसीजन, देन योर टॉपिक नंबर 3 दैट इज डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, देन टॉपिक नंबर 6 ऑफ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग. So these topics are of utmost importance. If you are able to manage this, इनमें से अगर एक क्वेश्चन इसमें से, दो क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता था, so you could have easily gotten 4 marks out of 10. कट ऑफ कितनी गई थी? The cut off was 1.5 marks. So this give you a rough idea how you can approach the decision making also. If again you want to prepare the best of the best in decision making, then go for other 3 topics. इसके बाद easily you will be able to attempt 8 to I would say 9 question in the decision making, right? अगर आप सिर्फ इन चुनिंदा टॉपिक्स को और सिलेक्टिव टॉपिक्स को you do well. All right, so I hope यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी आपको क्लियर हो गया है. नाउ वी हैव लुक्ड एट द होल सिलेबस कि आपको कैसे सिलेबस को अप्रोच करना है, क्या क्या पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है. आई होप यू हैव द अंडरस्टैंडिंग. इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा सा PYQs को देख लो और एक बार कंप्लीट सिलेबस को देख लो, राइट. अगर आपको और हेल्प चाहिए डिकोडिंग सिलेबस की डिकोडिंग में तो डू लेट अस नो. उसके बाद चलते हैं कि अब पता तो चल गया पढ़ना क्या है, पर मैं पढ़ूँ कहाँ से. सो लेट डिस्कस दैट. सो अगेन सॉरी, करंट अफेयर आपका रह गया था. करंट अफेयर इज ऑफ ESI, ARD एंड GA में भी करंट अफेयर है. तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें रादर देन सेइंग कि ये पढ़ ले, ये मत पढ़, ये मत पढ़, आई वुड से कि फोकस ऑन द गवर्नमेंट स्कीम ऑफ ESI एंड ARD, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. सिमिलरली रिपोर्ट्स दैट आर देयर इन ESI एंड ARD, चाहे वो आपके GDP के प्रोजेक्शन हो, वेदर इट इज़ द डाटा रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ योर ग्रेन्स, सो उस डेटा को या रिपोर्ट्स को आपने करना है. देन एनी करंट डेवलपमेंट, दैट इज एनी MOU is signed, any initiative is taken, any week is celebrated, some congress has been held, so these kind of thing you need to do in the current development. इससे भी क्वेश्चन आते हैं. So these are the subjects and these are the topic you will have to prepare for these 3 का करंट कंपोनेंट. अब इसमें किसका करंट सबसे इंपॉर्टेंट है? ESI का एंड GA का. इसमें से ये दोनों अगेन दीज 2 आर मेरिट सब्जेक्ट और ESI फेज 2 में भी पूछते हैं, GA नहीं आता है. सो कीप दिस इन माइंड. उसके साथ लेट्स गो फॉर द सोर्सेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द बुक्स, आई विल एक्सप्लेन यू कि आपको ऑनलाइन सोर्सेज कौन से करने हैं, बट फर्स्ट लेट डिस्कस द बुक. सो आपकी जो बुक्स होने वाली है दैट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल योर अरुण कात्यान की फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर. देन देर इज RK शर्मा की एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस. देन कॉम्पिटेटिव बुक फॉर एग्रीकल्चर दैट इज रिटन बाय नीमरा सुंडा. तो दीज 3 बुक्स यू कैन रेफर फॉर द कोर एग्रीकल्चर, राइट. जो पौधे वौधे उगाने का काम होता है उसको आपको नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी. बट देयर आर एलाइड सब्जेक्ट्स ऑल्सो. एलाइड सब्जेक्ट कौन से हैं? सो देयर इज एनिमल हस्बेंड्री, देयर इज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, देयर इज फिशरीज. इनके लिए अगेन यू हैव रिस्पेक्टिव बुक्स ऑफ GC Banerjee एनिमल हस्बेंड, अ टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फॉर एनिमल हस्बेंड्री. फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग द एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बाय जगदीश्वर सहाय यू हैव. एंड फॉर फिशरीज द ICAR की हैंडबुक ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इज द बुक फॉर यू. These books are bulky, but again, you don't need to cover it from page to page. Just the topic that I have shown you. Look for those topics, उनको cover करो and you will be good. Right? अब online sources को कैसे utilize करें? So I'll just show you. So first of all, there are 2 important websites that you will have to note down. That is TNAU and the second is eCourse. So how you should use it? Let me just show you. All right? सो जस्ट व्हेन यू ओपन द गूगल ना, यहाँ पे आपको सर्च करना है. लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ एक्वाकल्चर, राइट. एक्वाकल्चर के बाद आपने इफ यू आर लुकिंग फॉर द E-Course तो आपने उसमें दबा देना है E-Course. तो इट विल टेक यू द पेज लाइक दिस, राइट. यहाँ पे देखो द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू आर सीइंग, यू विल ओपन दैट. नाउ it will again take you to a subject of principles of aquaculture. This is a syllabus of fisheries that the people who study fisheries ना उनको पढ़ना पड़ता है. That is why you don't need to cover each and everything from there. So यहाँ पे देखो हमारे लिए relevant क्या है. I have told you the type of aquaculture, right? So these are all the type of aquaculture. So here you will have to open just this and it will give you the definition of this. Then you can just go here on the left side and it will show you next topic. You can go read the next topic. So again, this is how whole topic will be given here. You will have to refer to your syllabus and to important topics to cover it, right? So this is about the E-Course. Now how to utilize TNAU? Again, you will just have to type the word and followed by TNAU. So this is what you will type.
Once you are done with this, it will take you to the home page, right? So this will be the home page. Again, everything is not important for us. What is important for us? The aquaculture that we are looking for. So you will click on this, it will take you to all the freshwater aquaculture animals that are there. So the most important one for your NABARD will be the carp one. So you will just open that. Isme carp culture once you open, so it will give you all the details that you require for your exam to understand this particular topic. All right. So this is how you will utilize these courses for the ARD, I would say. इसके बाद देखो यहाँ पे अगेन आई विल हैव टू इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन यू, सो आई विल गिव यू कि ARD आपका हो गया. देन कम्स योर ESI. सो ESI में आपको देखना है कि दीज आर ऑल द बुक्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर योर ESI. आइदर फॉर इकोनॉमिक्स यू गो विद द रामेश सिंह की जो इंडियन इकोनॉमी है. इफ somebody is preparing for UPSC, most probably आपने ये बुक देखी होगी या पढ़ी होगी, राइट? सो इफ यू हैव कवर्ड दिस देन नो नीड टू गो एनी फर्दर. आपका अच्छे से प्लान हो रखा है. इफ यू हैव मेड सम नोट, जस्ट रिवाइज थ्रू दोज नोट्स. अदरवाइज जस्ट प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन टू गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. इसके अलावा अगर आपने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी, यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, ESI में दिक्कत है, इन दैट केस यू कैन आइदर गो फॉर दिस बुक और यू कैन गो फॉर NCERT. अगेन ये NCERT आपको फ्री में ऑनलाइन मिल जाती है, PDF इसके अवेलेबल होते हैं. सोशल इश्यूज़ के लिए यू कैन गो विद द सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, ये बुक है. अगेन राम आहूजा की बुक है, आपने पेज टू पेज ये कवर नहीं करनी है. You will just have to focus on the important topic and the topic relevant to your syllabus. इसके अलावा फ्री सोर्सेज की इफ़ यू टॉक अबाउट, तो यहाँ EconLib करके एक वेबसाइट है. सो आई विल जस्ट शो यू अगेन. आपको क्या करना है, यू विल जस्ट हैव टू कॉपी द URL फ्रॉम हियर. वंस यू डू दैट इट विल टेक यू टू, अगेन सर्च इंजन में आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा या फिर ये पेज ओपन होके दिख जाएगा. सो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखो अगेन यहाँ पे आपको समझ तो आएगा नहीं इसको कैसे हम लोग नेविगेट करें. तो जस्ट गो इन द इंसाइक्लोपीडिया बाय टाइटल. ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया में यू विल हैव टू गो. इंसाइक्लोपीडिया को कैसे आप ओपन करोगे, ब्राउज बाय द टाइटल. सो ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक विल बी ओपन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? तो अब आपने क्या करना है, लेट्स से व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर NABARD, तो आपके सिलेबस में भी है. तो यहाँ पे आपने इसके बारे में आपको मिल जाएगा सब कुछ लिखा हुआ. अगेन ऑफकोर्स इंडिया का काफ़ी बार एग्जाम्पल मिलेगा, काफ़ी बार नहीं मिलेगा, बट आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एग्जाम्पल और सोर्स सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, राइट? सो आई होप यहाँ से आपको क्लैरिटी आ गई है कि इकोनॉमिक्स कैसे प्रिपेयर करनी है फॉर योर एग्जामिनेशन. सोशल इश्यूज़ की इफ़ आई टॉक अबाउट, सोशल इश्यूज़ तो देखो थोड़ा सा आपको सेंसस की हमारे हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर बुक ही है. ऐसा डेडिकेटेड कोई ऑनलाइन सोर्स नहीं है फॉर द सोशल इश्यूज. एंड यहाँ पे आई वुड से कि ज़्यादा फोकस करना कि जो आपकी स्कीम्स है, राइट, तो उनमें आपने फोकस करना है. नाउ कमिंग टू द योर नॉन मेरिट सेक्शन. तो नॉन मेरिट सेक्शन में देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द बुक्स क्वांट के लिए एंड रीजनिंग के लिए. इंग्लिश के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट एनी बुक. सिंपल रीजन बीन इंग्लिश जितनी आपको आती है दैट इज़ मोर देन एनफ. क्वेश्चन आपको जहाँ मिलते हैं आप वहाँ से करो, नहीं मिलते तो मैं बताऊंगी क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे. बट क्वांट रीजनिंग के लिए दीज आर द बुक्स दैट यू विल हैव टू डू. सो एस चांद, RS अग्रवाल की क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है एंड RS अग्रवाल की ही रीजनिंग की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, राइट? तो ये आपको इतना समझ में आ गया. देन इफ़ आई टॉक अबाउट द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए द अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है. यहाँ पे यू विल गेट क्वेश्चंस आल्सो एंड थ्योरी आल्सो. सो ये दोनों आपको प्रोवाइड करती है, दैट इज़ वाई इट्स अ गुड बुक. बट अगर आपके पास कोई भी बुक पढ़ी है, आपके स्कूल टाइम की बुक पढ़ी है, आपने कोई और बुक पहले से ले ली है वो पढ़ी है, उसको पढ़ो. कंप्यूटर इज़ कंप्यूटर, राइट? वो लॉजिक तो चेंज नहीं करेंगे, डेफिनेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तो चेंज नहीं होगी. सो दैट यू विल हैव टू डू. उसके बाद प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज़ देयर फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट? सो दीज आर द बुक्स दैट आर देयर. इन बुक्स को भी अगेन आपने एंड टू एंड कवर नहीं करना है. इफ़ रिक्वायर्ड बेसिक्स करो, अदरवाइज क्वेश्चंस करो. ऑल राइट, नाउ क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए वन ऑनलाइन सोर्स दैट आई प्रेफर विल बी इंडियाबिक्स. सो इंडियाबिक्स में अगेन यू कैन आइदर कॉपी द URL और व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो इन द वेबसाइट. आपको यहाँ पे क्या करना है, बस आपने वेबसाइट का नाम डालना है. वंस यू हैव डन दिस यू विल जस्ट गो ऑन द फर्स्ट आइकन, यहाँ पे देख लेना ऐसे, एंड यू विल ओपन दिस, right? So once this is open, this will not only help you,
अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट उससे इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। तो लेट्स से कि यू वांट टू प्रैक्टिस DI, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। यू जस्ट ओपन दिस, इट विल ओपन समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे व्हाट यू विल हैव टू डू, लेट्स से यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड पाई चार्ट, कोई भी कर सकते हो। मेरे को पाई चार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने, सो आई विल जस्ट प्रेस दिस एंड इट विल शो मी डिफरेंट पाई चार्ट। तो यहाँ पे 12 क्वेश्चन है, आई विल जस्ट प्रेस ऑन सेकेंड वन। बस आपको उसके बाद कर्सर को मूव करना है, यू विल बी एबल टू फाइंड द क्वेश्चन दैट यू कैन आंसर। ओके, इसका आंसर आपको सॉल्व करके ये डायरेक्शन मिल जाएगी सॉल्व करने के लिए, इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू। सिमिलरली देखो, इसके ये हो गया आपका क्वांट्स के लिए। रीजनिंग के लिए भी आपको मिल जाएंगे, राइट। वर्बल रीजनिंग में आपके इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के भी देखो यहाँ पे ऑल द क्लोज टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। सिनोनिम एंटोनिम्स आपको मिल जाएंगे, स्पॉटिंग द एरर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एवरीथिंग दैट यू रिक्वायर विल बी देयर इफ़ यू लुक एट दिस, राइट। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आई वुड से कि क्लोज टेस्ट की और कॉम्प्रिहेंशन की यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस को आप कर लेना। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट द रीजनिंग, सो विल यू गेट द रीजनिंग ऑल्सो? येस, यू विल गेट द रीजनिंग ऑल्सो। सो हियर यू कैन सी, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको ये सारी की सारी रीजनिंग मिल जाती है दैट यू कैन सॉल्व। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सो हियर यू कैन सी एनीथिंग दैट यू वांट टू लुक फॉर, यू कैन लुक फॉर। लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए थोड़ा सा ये रही, तो आपने देखना होगा यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन कर लेना, राइट। नंबर सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो दिस काइंड ऑफ थिंग यू विल हैव टू डू। उसके अलावा आपका क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। नॉन वर्बल रीजनिंग वी हैव ऑलरेडी चेक्ड, राइट। सो दिस इज हाउ you will get everything that you require for this examination here. Okay, तो अभी आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फ्री में, तो दिस वेबसाइट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। इसके अलावा चलते हैं, क्वांट एंड रीजनिंग का हो गया। नाउ कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के लिए तो देखो भाई, दिस देयर इज अ वेबसाइट गीक्स फॉर गीक्स। सो आई विल शो यू द वेबसाइट। सो कंप्यूटर के केस में आई वुड से कि इस URL को जस्ट कॉपी करना आप, you go to the website, you enter the URL and it will take you to the course where the computer के basic will be done, राइट। तो दिस कैन अगेन, आई एम नॉट सेइंग कि ये आपको हेल्प करेगा 100% कवर करने में, बट मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। कट ऑफ क्लियर होने लायक आपका ईजिली कवर हो जाएगा, कि कोई स्ट्रगल नहीं बचेगा उसके बाद वंस यू डू दिस। सो दिस इज द चैप्टर और दिस इज द कोर्स दैट वी हैव। यहाँ से यू कैन सर्च, आपको जितनी चीज़ें चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। तो यहाँ पे देखो, आई वुड से जैसे इंट्रोडक्शन टू MS Excel, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ बहुत ही डिटेल में पिक्चर यूज करके सब बता रखा है, व्हाट इज रिबन, व्हाट इज ये, व्हाट इज वो, एवरीथिंग यू विल कम टू नो थ्रू दिस, राइट। तो इसको आप इजीली कर सकते हो। देन पावर पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। ऑलराइट, नाउ अब इतना हो गया। इसके बाद नॉन मेरिट सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, राइट। तो अभी आपका क्या बचता है, करंट बचता है। सो फॉर करंट देखो, सबसे पहले हैव अ अंडरस्टैंडिंग, आपकी स्कीम्स है, रिपोर्ट्स है एंड आपके करंट अफेयर्स हैं। सोर्सेज इसके लिए क्या होंगे, ऑनलाइन सोर्सेज में देयर इज विकासपीडिया एंड PIB, एंड न्यूज़पेपर में बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर को आप रेफर कर सकते हो। अगर आपको जानना है कि कौन सी मिनिस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PIB में बहुत मिनिस्ट्रीज होती हैं, राइट। न्यूज़पेपर में समझ नहीं आता, बहुत सारी स्कीम्स आ रही हैं। सो वेयर कैन आई गो टू कवर द स्कीम? सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज दैट आर देयर। बट अगर उसके अलावा जो नीचे वाले बॉक्स में कोई मिनिस्ट्री है, इफ दे आर ऑल्सो कवरिंग सम काइंड ऑफ schemes that are related to either economy or social issue, you will have to do that. So I'll just show you the Vikaspedia also, but let me just tell you कि पहले करना कैसे है। रिपोर्ट भी देख लेते हैं। रिपोर्ट देखो यहाँ पे, दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, जहाँ पे आपको हाईलाइट रिपोर्ट्स के मिल जाएंगे, आइदर इन द PIB और इन द मिनिस्ट्रीज वेबसाइट। यू विल हैव टू गो रिपोर्ट, आपको हाईलाइट ढूंढ के वहाँ पे ही रिपोर्ट के साथ कर लेने हैं। इसके अलावा सेंसस एंड SECC के लिए आपको अलग से ढूंढना पड़ेगा, यू विल गेट द डेटा रिलेटेड टू दिस। अब स्कीम्स में आपको करना क्या होता है, स्कीम्स तो बहुत बड़ी होती हैं, क्या मेरे को हर एक चीज़ एंड टू एंड पढ़नी है? नो, आपका जो मेन फोकस होगा दैट शुड बी ऑन मिनिस्ट्री, लॉन्च ईयर, फंडिंग, बजट एलोकेशन, ऑब्जेक्टिव, हु इज द टारगेटेड बेनिफिशियरी ऑफ दैट स्कीम, अगर स्टेट की स्कीम है तो कौन सी स्कीम है, एंड एनी करंट डेवलपमेंट दैट इज देयर। क्योंकि देखो, स्कीम जब न्यूज़ में होती है तभी वो इंपॉर्टेंट होती है। कितने महीने की इंपॉर्टेंट होती है? 3 महीने की इंपॉर्टेंट होती है। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट रिपोर्ट, रिपोर्ट में आपको क्या चीज़ें करनी है, यू विल हैव टू डू एनी रिपोर्ट दैट इज रिलेटेड टू योर सिलेबस, देन यू विल हैव टू डू एनी रिपोर्ट दैट इज रिलीज बाय एनी रेप्यूटेड इंटरनेशनल बॉडीज और नेशनल बॉडीज। देन न्यूज़पेपर में अगर कोई रिपोर्ट है तो यू विल डू, एंड देन आपको न्यूज़ में भी कोई रिपोर्ट करनी है। आइडियली देखो हो सकता है 1 ईयर हो, बट 1 ईयर तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है अभी इस टाइम पे। तो आई वुड से कि फोकस करना कि जो पिछले 3 मंथ न्यूज़ में है,
राइट, न्यूज़ में बोला ना हमने, तो जो पिछले 3 मंथ न्यूज़ में है आप उन रिपोर्ट्स को अच्छे से करो। ऑलराइट, सो आई होप यहाँ पे यू हैव द आइडिया कि कैसे क्या चीज़ें करनी है। करंट अफेयर की बात करूँ तो देखो करंट अफेयर में तो यू विल हैव टू डू जस्ट द करंट अफेयर, ठीक है, एनी करंट अफेयर दैट इज देयर यू विल हैव टू डू। अब मैं आपको बता देती हूँ विकासपीडिया या पीआईबी को हाउ यू विल हैव टू डू। विकासपीडिया में तो देखो नॉर्मल यू प्रेस द विकासपीडिया यू विल बी एबल टू गेट इट। इसके लिए पीआईबी के लिए व्हाट यू कैन डू, जस्ट प्रेस पीआईबी एंड यहाँ पे आपके सारे पीआईबी का जो फर्स्ट लिंक आता है यू विल ओपन इट, राइट। अब इस लिंक में देखो आपको डेली वाली तो आपको वो मिल ही जाएंगी, पीआईबी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी जो भी न्यूज़ होंगी, बट इफ़ यू वांट टू लुक फॉर अ स्पेसिफिक डेट, उस केस में आपको क्या करना है, तो ये आपकी पीआईबी की वेबसाइट खुल गई, राइट। तो यहाँ पे देखो अगेन हियर यू कैन सी दिस इज द वेबसाइट दैट यू आर गेटिंग, लेटेस्ट प्रेस रिलीज आपको यहाँ मिल जाते हैं, बट दिस इज द वेबसाइट। यहाँ पे आपने क्या करना है, यू विल हैव टू गो फॉर प्रेस रिलीज ऑल रिलीज, ऑल राइट, एंड इसमें जाओगे आप। Now there are various ministries that you will have to do. Let's say I'll select all ministry. I'm looking for a date of 1 September 2023. It will give me all the news that are there. अब इसमें आपकी कुछ रिपोर्ट भी होंगे, आपकी स्कीम्स भी होंगे और आपके करंट अफेयर भी होंगे। विल यू हैव टू डू एवरीथिंग? नो। Will you have to do certain current affairs that are important? Yes. Which one is important? That is related to your economy, social issue. Economy means इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं, these kind of schemes और रिपोर्ट और करंट अफेयर। देन द अदर विल बी सोशल इशूज़। अभी हमारे सोशल इशूज़ क्या है? अगेन पोवर्टी हमारा सोशल इशू है, जेंडर बायसनेस सोशल इशूज़ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर द सोशल कॉन्स्ट्रेंट दैट पुअर पीपल फील। सो ये वाली चीज़ें आपने करनी है। इसके अलावा मैं बात करूं कि आपके क्या इंपॉर्टेंट है इन द एआरडी, तो एआरडी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन की अगर बात होती है, प्रोडक्टिविटी से बात होती है, सॉइल हेल्थ को लेके बात होती है, तो यू विल हैव टू डू दैट। इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट में डेवलपमेंट कैसे होगा, you provide housing, you provide toilets, you provide sanitation, you provide drinking water to the people, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो उनकी ग्रोथ होगी। So anything, any scheme, report, current mentioned here, you will have to do that, right? So these are everything that you need to take a look at. तो ऐसे आप PIB को भी कवर करोगे, right? Now इसके बाद you have the option current affairs ARD के हो गए। अब ARD सॉरी ESI के करंट अफेयर हो गए। नाउ द ARD के लिए अगेन आई हैव टोल्ड यू PIB कैसे कवर होगा। इसके बाद बिजनेस लाइन, इफ़ यू आर रेफरिंग टू एनी न्यूज़पेपर यू विल डू दैट। उसके अलावा दो जो मिनिस्ट्रीज़ हैं आपकी एग्रीकल्चर की एंड एनिमल हस्बेंड्री की, ये दो स्कीम्स आपकी मिनिस्ट्रीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ARD करंट अफेयर। क्या सिर्फ इन्हीं दोनों से स्कीम से क्वेश्चन आएंगे? नो। क्वेश्चन तो देखो कहीं से भी, अगर इफ इट इज डूइंग द एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम, इवन द इकोनॉमी से रिलेटेड काम भी वहाँ पे मिल जाता है। नाबार्ड में ऐसे स्ट्रिक्टली नहीं होता कि ESI के सेक्शन में सिर्फ ESI आएगा या ARD के सेक्शन में सिर्फ ARD आएगा। समटाइम ARD के क्वेश्चन ESI में पूछ लेते हैं, ESI के क्वेश्चन ARD में पूछ लेते हैं। ऑल एंड ऑल मोस्ट चीज़ें आपके सिलेबस से ही आती है। दैट इज़ वाई स्टिक विद द सिलेबस, दैट विल बी माई एडवाइस। अगर ARD करंट में रिपोर्ट की बात करें तो दीज आर 3 रिपोर्ट दैट आर देयर, दैट आर द सेंसस रिपोर्ट। हैंडलूम सेंसस आपका, एग्री सेंसस और लाइफ स्टॉक सेंसस, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नाबार्ड। ये कैसे मिलेगा? आपको जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, देयर यू विल गेट दिस। तो इसके अलावा मैं आपको एक बेटर ऑप्शन बताऊंगी, क्योंकि रिपोर्ट ऐसे पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आई विल टेल यू वन ट्रिक टू दैट ऑल्सो और आई विल हेल्प यू। बट अगेन उसके बाद अलावा एनुअल रिपोर्ट जो आपकी एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की है, रूरल डेवलपमेंट की है एंड नाबार्ड की है, दैट इज इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर कहाँ से कर सकते हो? देखो PIB से तो कर ही सकते हो। उसके अलावा एग्री स्पेसिफिक करंट अफेयर के लिए यू हैव ऑप्शन ऑफ गोइंग टू कृषि जागरण। कृषि जागरण की ये वेबसाइट है, अगेन इसमें जाओगे आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे। देन न्यूज़पेपर को भी आप रेफर कर सकते हो। दीज आर ऑल द ऑप्शन दैट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। ऑल राइट, अब मैंने आपसे कहा था कि ठीक है, आई टेल यू हाउ यू कैन डू द रिपोर्ट ऑल्सो, सो आई जस्ट टेल यू नाउ। तो देखो उसके लिए यू विल गेट दिस पर्टिकुलर चैनल ऑफ एड्यूटैप, आपने इसमें जाना है। उसके बाद इट विल टेक यू टू द होम पेज। सो होम पेज आपको कुछ ऐसा मिलेगा, आपने इस पर फोकस नहीं करना, यू विल हैव टू गो इन टू द प्ले लिस्ट। तो आप जाओगे प्ले लिस्ट में। यहाँ प्ले लिस्ट में देखो दीज आर ऑल द प्ले लिस्ट, दीज आर ऑल द वीडियोज दैट यू विल हैव इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे आपके रेलेवेंट कौन सी वो हैं प्ले लिस्ट है, उसको आपने फोकस करना है और उसको कवर करना है। आई वुड से सबसे पहले देखो
अगर आप ARD के लेके पैनिक कर रहे हो तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, हमारी ARD स्टैटिक की अभी सीरीज रन कर रही है, 2 वीडियोस ऑलरेडी आर पब्लिश। तो आप उसके लिए ये ARD स्टैटिक की आपको सीरीज दिख रही है, आप इसको ओपन करोगे, सो हियर यू विल सी जितनी भी आपके ARD से रेलेवेंट चैप्टर्स हैं वो सारे हम, एक तो सीरीज चल रही है, ये तो लाइव चल रही है, सो आई वुड रिकमेंड यू कि 2 PM शार्पली आप ज्वाइन करो। शामली मैम डेली क्लासेस ले रही हैं, संडे को भी क्लासेस होंगी, राइट? तो वो आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज अगर आप सर्टेन टॉपिक से स्ट्रगल कर रहे हैं, सो यू विल गेट a lot of video. This year also we have run 2 videos already. उसके अलावा आपको लास्ट ईयर की, क्योंकि ARD स्टैटिक है, चेंज तो हो नहीं रहा, तो आपको इतनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। Whatever you want to look for, you will get it there, so you can go and check it. राइट, सो आई होप यहाँ से यू हैव अ क्लैरिटी कि आप कैसे करोगे। तो ये सिर्फ ARD के लिए हो गया। उसके अलावा, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, देखो इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, सो दैट आई विल टेल यू। यहाँ आप देख सकते हो नाबार्ड से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे ARD के करंट अफेयर ऑल्सो। सो इफ़ यू गो इन टू दिस, करंट अफेयर जितने भी हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब रिपोर्ट एंड इंडाइसिस से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो दिस इज देयर। तो रादर देन गोइंग फॉर लुकिंग द रिपोर्ट, भाई किसी में समरी दी है किसी में नहीं दी है, आपके पास हमारी प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आपको जितनी चीज़ें चाहिए, रिपोर्ट कंटिन्यूसली हो रही हैं, और हमारे यूट्यूब सेशन भी आ रहे हैं 6 PM पे, ठीक है? तो 6 PM वाले सेशन भी आपने लेने हैं, वहाँ पे जितनी आपकी करंट अफेयर और नॉन मेरिट सेक्शन है वो सारे के सारे हम कवर करवाएंगे। तो वहाँ पे आपने जाना है, हर 6 PM को आपको क्लासेस मिल जाएंगी, राइट? तो आपने उन क्लासेस को भी लगाना है, आज से स्टार्ट हो चुकी हैं क्लासेस, सो यू गो फॉर दैट। तो ये आपको करना है। इसके अलावा PIB इफ़ यू फाइंड कि डिफ़िकल्ट हो रही है तो ऑलवेज फील फ्री टू टेक हेल्प ऑफ दिस PIB प्लेलिस्ट। देन गवर्नमेंट स्कीम के लिए भी यू हैव दीक्षा मैम, शी वो स्कीम के सेशन लेती हैं एंड शी टेल्स अ लॉट कि ठीक है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं है, सो यू विल गेट एवरीथिंग दैट इज़ देयर रिलेटेड टू दैट। रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी यू विल गेट दी प्लेलिस्ट है। सो आपने, ये कुछ प्लेलिस्ट हैं जो आपके नाबार्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको फॉलो करोगे, राइट? सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, कैसे करना है, कैसे क्या चीज़ होनी चाहिए, तो आप इसको थोड़ा सा फॉलो करते हुए चलोगे। सो इसके बाद कमिंग बैक, तो ये आपने हो गया कि कहाँ से आपने क्या चीज़ें कवर करनी है। आई होप यहाँ से आपको क्लियर आइडिया मिल गया है। नाउ कमिंग टू द प्लान, सो दिस विल बी द प्लान। आई हैव डिस्कस दिस प्लान ऑलरेडी ऑन संडे। इफ़ यू हैवंट चेक दिस, गो चेक इट। अदरवाइज ब्रॉडली आपका प्लान ये रहने वाला है, दिस इज समथिंग यू विल फॉलो। यहाँ पे देखो ARD स्टैटिक, इफ़ इट इज़ न्यू आई हैव गिवन यू ड्यू टाइम। अगर ARD स्टैटिक आपके लिए न्यू नहीं है, आपने एग्रीकल्चर पढ़ रखी, बस 1 वीक में रिवाइज करो या उससे कम टाइम लगा रिवाइज करो, जंप इनटू द ESI 1 एंड फॉलो दिस अलोंग, राइट? सो आई होप यहाँ से यू हैव द आइडिया क्या चीज़ें कब कब भी करनी है। नाउ कमिंग टू योर मिस्टेक्स। मिस्टेक्स में देखो अगेन देर आर 2 सेक्शन, आई हैव टोल्ड यू। नॉन मेरिट सेक्शन यहाँ पे है, मेरिट सेक्शन यहाँ पे है। द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग इन ईच सेक्शन विल बी वेरी डिफरेंट। तो सबसे पहले नॉन मेरिट सेक्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट ट्राई टू कवर 100% ऑफ द सिलेबस। हार्म कुछ नहीं है, बस ये है कि अगर आपने टाइम यहाँ ज़्यादा दिया तो यू विल बी कटिंग आउट द टाइम फ्रॉम द मेरिट सेक्शन। उसकी वजह से क्या होगा, एग्जाम में रिजल्ट तो देखो फाइनली यहीं से आना है। फेज 1 क्लियर तो यहाँ होना है, यहाँ तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। सो एफर्ट विल नॉट बी इन द राइट डायरेक्शन। इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर प्लानिंग टू गिव कैट ऑल्सो, यू कैन गो अहेड, यू कैन डू द क्वांट एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश। बट सिर्फ नाबार्ड के लिए बहुत ज़्यादा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। सो दिस मिस्टेक यू विल ट्राई टू मेक अवॉइडिंग, राइट? उसके बाद आपका जो नॉन मेरिट सेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। कब? प्रिपरेशन में भी, राइट? एंड एग्जाम सॉल्व करते हुए भी। प्रिपरेशन में आप बहुत ज़्यादा टाइम क्यों नहीं दोगे? अगेन क्योंकि टाइम अब हमारे पास लिमिटेड है, नोटिफिकेशन इज आउट, वी हैव अ डेट, 16 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, सो यू हैव लिमिटेड टाइम। उसके अलावा जब पेपर सॉल्व कर रहे हो, देखो क्यूमुलेटिवली फॉर 200 क्वेश्चन यू विल गेट 120 मिनट। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा टाइम नॉन मेरिट सेक्शन पे लगा दिया, उसके बाद आपका मेरिट सेक्शन के लिए टाइम कट आउट हो जाएगा। सो यू विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट। उसके बाद लैक ऑफ एक्यूरेसी इज वन मिस्टेक। सम टाइम व्हाट हैपन, लेट्स से फॉर डिसीजन मेकिंग पीपल आर लाइक कि 3 क्वेश्चन मैं करके आया हूँ, मेरा तो हो जाएगा, क्योंकि 1.5 मार्क्स 1 मार्क्स इज द कट ऑफ। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग में आता है 0। देन द पीपल आर सरप्राइज कि ये कैसे हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि जो 3 क्वेश्चन किए थे दे वर रॉन्ग, राइट? तो यहाँ पे देखो अल्टीमेटली आपको क्या करना है इन 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यहाँ तो आपने सिलेबस चेक करना है फर्स्ट के लिए, इफ़ यू आर कवरिंग 100%, तो वो चीज़ बिठा लो कि दिस इज नॉन मेरिट सेक्शन, दीज आर द टॉपिक दैट आर इंपॉर्टेंट, आई विल प्रैक्टिस दैट। दिस
बाकी के दो टॉपिक्स को और बाकी के दो चीज़ों को आपने कवर करने के लिए क्या करना है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस इन अ टाइम बाउंड मैनर। टाइम सेट करके क्वेश्चन करो कि भाई 30 सेकंड में मैं कितने क्वेश्चन कर रहा हूँ, 1 मिनट मेरे को कितने क्वेश्चन में लग रहा है, दिस इज यू विल हैव टू प्रैक्टिस। कमिंग टू द मेरिट सेक्शन, मेरिट सेक्शन में देखो, एक तो फर्स्ट रीडिंग में स्टूडेंट्स डू कंप्लेन, फर्स्ट रीडिंग में मैम हमें याद नहीं हो रहा, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ पर मुझे फर्स्ट रीडिंग में याद नहीं हो रहा। फर्स्ट रीडिंग में आपको याद होगा भी नहीं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डू टू थिंग्स एट अ सिंगल टाइम। क्या कर रहे हो आप, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि सब्जेक्ट नया है, प्लस मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपने फर्स्ट रीडिंग में केवल मेमोराइजेशन पे नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर उसके साथ ऑफकोर्स चीज़ें याद तो होंगी आपको। अगर आप पहली रीडिंग में 100% रीड करने के बाद 40% या 60% तक भी मेंटेन कर लेते हैं, दैट विल बी वेल इनफ। बाकी का आपने परसेंटेज इंक्रीज कब करना है, व्हेन यू आर रीडिंग द डूइंग द रिविजन ऑल्सो एंड यू आर गिविंग द मॉक ऑल्सो। उसके थ्रू यू विल सी कि आपने जो भी कवर किया उसका 80 to 90% यू आर ईजिली एबल टू रिटेन। ठीक है, उसके बाद आपने कंप्लीटली अवॉइड नहीं करना है ईएसआई को। आई डू अंडरस्टैंड मार्क्स कम है फेज 1 में, बट अगर फेज 2 में क्वेश्चन आया 5 and 10 मार्क्स का, देन यू विल बी इन अ वेरी पिंची सिचुएशन। सो आई वुड से कि उसको अवॉइड करने के लिए ईएसआई के सम चैप्टर यू प्रोवाइड अभी कर लो। उसके बाद जब फेज 1 आपका क्लियर हो जाएगा, बाकी के चैप्टर तब पिक कर लेना, बिकॉज देन यू विल ओनली हैव टू प्रैक्टिस फॉर 3 सब्जेक्ट, राइट। तो वो आप उस वक्त कर लेना। देन करंट अफेयर या तो बहुत ज़्यादा कर लेना, भाई मैं 1 साल के करंट अफेयर कर रहा हूँ और मुझे एक्स का करंट अफेयर आधा पढ़ने का अच्छा नहीं लगा तो मैं वाई को शुरू से कर रहा हूँ, फिर मुझे वाई से मन नहीं लगा तो बीच में मैंने जेड शुरू कर दिया। ये वाली चीज़, एक न्यूज़ को 10 सोर्सेज से कवर करना प्लस बहुत ज़्यादा पीछे चले जाना टाइम में टू कवर द करंट अफेयर, ये आपने नहीं करना है। अल्टीमेटली आपको फोकस करना है कि 6 मंथ तो देखो ऐसा है कि आइडियल होते, टाइम नहीं है तो अभी 3 मंथ पे फोकस करो, इनके बिना पेपर में मत जाना 3 मंथ कवर हुए बिना। उसके अलावा काफ़ी बार टू लिटिल करंट अफेयर, हम 3 महीने कहते हैं, बच्चे 1 महीने के करके जा रहे हैं, राइट। तो ये भी नहीं करना है, टू लिटिल ऑफ अ करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड व्हेन यू आर डूइंग द करंट अफेयर गवर्नमेंट स्कीम में, देखो ये मत करो कि गवर्नमेंट स्कीम का नाम याद कर लिया, ईयर याद कर लिया, ऑब्जेक्टिव याद कर लिया, नेक्स्ट। थोड़ा सा उसको पढ़ो, की फीचर पढ़ो उसके, ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ो उसके, क्योंकि वो फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है आपकी, राइट। तो यहाँ पे टू मच और टू लिटिल दोनों नहीं करना है फॉर द करंट अफेयर। तो दिस इज समथिंग दैट यू विल ट्राई टू डू, राइट। इन मिस्टेक्स को आप कैसे अवॉइड करोगे, आई हैव टोल्ड यू। करंट अफेयर में आपने टाइम लिमिटेड रखना है, सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। ईएसआई आपको कुछ चैप्टर्स तो करने ही होंगे, 7 चैप्टर्स। एंड एआरडी के लिए या इन जनरल भी अगर आपके लिए कोई सब्जेक्ट न्यू है तो आप उसको मेमोराइज एंड अंडरस्टैंड दोनों साथ में नहीं करोगे, पहले अंडरस्टैंडिंग बनेगी फिर मेमोराइजेशन आएगा। सो आई होप यहाँ से यू हैव अ क्लियर आइडिया कि कैसे आपने इस एग्जाम को अप्रोच करना है। अगर अभी एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है, सो फॉर दैट वी हैव लॉन्च दिस अल्टीमेट गाइड बुक। इन दिस गाइड बुक यू विल गेट कंप्लीट आइडिया और कंप्लीट गाइडेंस रिलेटेड टू योर decoded syllabus, related to your solved PYQs, related to the strategy and sources. So this guidebook will help you to clear everything that is doubting your mind. इसके अलावा this guidebook is absolutely free for you all. Yes, this is absolutely free. Just go in the description box and check out the link. Now if you want help from our side, so we have recently launched these 2 courses, that is live crash course and test series. Live crash course में you will get daily live classes. हाँ, टीचर आपसे डेली मिलने आता है, डेली आपकी लाइव क्लास होती है, इसके हेल्प से जितने आपके डाउट हैं वो डेली बेसिस पे क्लियर होते हैं। देन शॉर्ट नोट्स आपके इसमें ही मिलेंगे, माइंड मैप्स आपको मिलेंगे फॉर अ वेरी क्विक रिविजन, आपको करंट अफेयर मिलेगी कंप्लीटेड, एंड आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी क्रैश कोर्स के अंदर ही। इसके अलावा सिर्फ अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वी हैव द नाबार्ड ग्रेडेड 2023 टेस्ट सीरीज फॉर फेज 1 एंड फेज 2। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। देन आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे कि क्वांट अगर मैं करना चाहूँ, क्योंकि क्वांट के 20 क्वेश्चन आते हैं, सो आई जस्ट वांट टू प्रैक्टिस फॉर क्वांट्स, तो आप सेक्शनल टेस्ट कवर कर सकते हो। देन आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मिलेंगे फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए, जो कि इवेल्युएट होंगे। उसके बाद करंट अफेयर के टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट मतलब यू विल गेट 200 क्वेश्चन फॉर फेज 1 एंड फॉर फेज 2 यू विल गेट ऑब्जेक्टिव के 50 क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक्चुअल एग्जामिनेशन कैसा होता है, एंड टाइम आपको भी वैसे ही मिलेगा। अगर आपको इंटरेस्ट है इन 2 कोर्सेज में तो आई वुड रिकमेंड यू कि एक बार नीचे जाओ, लिंक को चेक करो। उसको करने से क्या होगा कि आपको कोर्स पे ऑफ भी मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑफ पे भी कुछ
चल रहे हैं कोर्सेज। इसके अलावा देखो लाइव क्रैश कोर्स में अगेन आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना, क्योंकि इसमें 8 से क्लास शुरू है, 8 को ओरिएंटेशन क्लास है, उसके बाद 9 से लगातार आपकी क्लासेस हैं, और आपको एग्जाम से पहले सिलेबस करा के आपको पूरा मिलेगा, सारे सब्जेक्ट आपके कवर मिलेंगे फेज 1 के। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे यू हैव अ क्लैरिटी, right? So with this, let's end this video. If you have any doubt, do let us know in the comment section. If you are new here, do remember to subscribe to our YouTube channel, and for the PDF go into the Telegram channel. Telegram में बस आपने EduTap दबाना है तो वहाँ पे हमारा चैनल आपको दिख जाएगा. Feel free to join us, right? So that will be it. I hope you will have a nice day.